So, let's begin the new presidential year with the pious Ashirvachan by Param Pujya Morari Bapu Ji's video address on values and responsibilities of business. On behalf of the IMC Chamber of Commerce and Industry, I would like to extend a very warm welcome to all our participants, dignitaries, members of IMC, and the new President and Vice President of IMC. May I start this session by inviting Mr. Rajiv Poddar, President IMC Chamber of Commerce and Industry, to present the welcome address. Over to you, Mr. Poddar. थैंक यू सतवी। परम पूज्य बापू के चरणों में मेरा प्रणाम। Respected governors, past presidents, ladies and gentlemen, a warm welcome. Today we have with us guests and dignitaries from all over the world. We are so blessed to begin our year with the blessings of Pujya Bapu. It is a dream come true. In spite of Bapu's Katha being on, Bapu has sent his blessings through a video message. Due to the network issue in Mahua, we couldn't get him live on Zoom today. At IMC, we have no words to express our gratitude and thanks to him. IMC is known to all of you, so I'm not going to talk about IMC. Moreover, I'm sure you're very keen to hear Bapu than me. I just want to say I'm humbled being elected to the chamber for the year. We have finalized the theme for the year as reboot, reform, and research, three most needed aspects in today's challenging times. Reboot our business, reform our policies, and research our economy. Today's Bapu's Ashirvachan will surely reboot all of us, reform our ways of living and thinking, and research our energies and business. With these words, I once again welcome you all to Bapu's Ashirvachan on values and responsibilities of business. Thank you. Thank you, sir. May I request Shelby to take over? May I now request the video of Param Pujya Bapuji to be played? No, sir, you'll have to do it again. Sorry for the technical itch. I'm sure we'll get there soon. Selby, I think let Narendra do it. Kadam, please take over. Yes. Play. Sharanam Prabodhi Shri Ramadutam Sharanam Prabodhi. IMC, Indian Merchant Chamber of Commerce and Industries, Mumbai, के सभी सदस्य भाई बहनों को यहाँ चित्रकूट धाम तलगा जरडा से सबका स्वागत और जय सिया राम। आपकी इतनी बड़ी संस्था
उसके प्रमुख पद की चेयर पर कितने कितने उद्योग जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों का विराजना हुआ है। आप सभी के द्वारा इस संस्था का गौरव भी बढ़ा है। इसी चेयर पर हमारे परम स्नेही राजीव भाई पोद्दार एक युवा उद्योगपति सेवा के लिए विराजित हो रहे हैं। इस बात की मुझे विशेष प्रसन्नता है। राजीव भैया की सरलता, विवेकशीलता, विचारशीलता और पूरे खानदान में रही अध्यात्म से और धर्म भावना से जुड़ी शालीनता से मैं परिचित हूं। इसलिए इतने बड़े पद पर राजीव भैया आसीत हुए हैं, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और मेरे दिल का आशीर्वाद। वैसे मेरे प्रति राजीव भैया की श्रद्धा एक आदर भाव के कारण मुझे निमंत्रित किया गया कि बापू मैं पदभार संभालूं और इस हमारी सभा का पहला प्रवचन आपके शब्दों से इसका श्री गणेश हो। उद्योग क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों में मेरी जानकारी बहुत कम, न के बराबर है। फिर भी आपका आग्रह है कि मैं कुछ कहूं, तो कुछ मिनटों के लिए मैं आपसे बात करूं, संवाद करूं। आप सभी मेरे भाई बहन
हमारे यहाँ शिव सूत्र में, मैं यदि नहीं भूलता हूं तो, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, उद्यमो भैरवः। उद्यम ये भैरव है। अब जरा भैरव शब्द आता है, भैरव नाम आता है, तो कुछ थोड़ा भयभीत सा ये शब्द लगता है, भयभीत करने वाला ये शब्द लगता है। जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ की नगरी में काल भैरव है, और उत्तर काशी में शांत भैरव है। कई प्रकार के भैरव, उसके पीछे कथानक पड़े हैं। बहुत सी बातें इसके पीछे हैं और विद्वत गण उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन शिव सूत्र वाला जो भैरव है, उद्यमो भैरव, यही साधक हे शिवरूप साधक, तेरा भैरव काल भैरव नहीं है, तेरा भैरव शांत भैरव भी नहीं है, तेरा भैरव उद्यम है, पुरुषार्थ है, प्रयत्न है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उद्यम रूपी भैरव आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी जरूरी है, अपने भीतरी शिव को प्राप्त करने के लिए। आर्थिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में अर्थ को सार्थक करके विश्व का विकास और विश्व के विश्राम के लिए भी जरूरी है। हम और बातों में न जाएं, तंत्र परक साधना में भी पुरुषार्थ तो चाहिए ही, प्रयत्न चाहिए, उद्यम चाहिए। और आपका जो क्षेत्र है, ये उद्योग क्षेत्र है, और उद्योग में तो यदि उद्यम न हो तो नए उद्यम स्थापित नहीं हो सकते, उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, परिपालित नहीं हो सकते, विकसित नहीं हो सकते। सीधा सा गणित है। हमारे शास्त्रों में प्रमाद को मृत्यु का पर्याय समझा है। प्रमाद माने मृत्यु। प्रमादी आदमी जीवित नहीं है, मरा हुआ है। हमारे रामचरितमानस में तो भगवान शिव और हिमालय कन्या भवानी का जब शादी हुई,
शिव और पार्वती का विहार चला और इस पावन विहार के परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कार्तिकेय है। उसको गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक अर्थ में, तात्विक अर्थ में पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ तो सबके लिए चाहिए, धर्म के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, अर्थ के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, अपनी कामनाओं, मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए और निर्वाण वांछु को तो गत्वा निर्वाण के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। तो भगवान शिव और पार्वती के घर जिस पुत्र का जन्म होता है उसका नाम कार्तिकेय है, लेकिन हमारे ग्रंथकारों ने उसके मुख 6 बताए हैं, षडमुख। जगजान षडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु में शिव सूत कर चरित संक्षेप ही कहा। वहां पुरुषार्थ के 6 मुख है। मेरी समझ गुरु कृपा से ऐसी बनती है कि औद्योगिक क्षेत्र में जब आप है तब कठिन परिश्रम, कठिन पुरुषार्थ, शारीरिक, बौद्धिक, चैतसिक, आत्मिक, सब प्रकार के पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उद्योग के लिए जो पुरुषार्थ है उसके मुख 6 है। मैं उसका थोड़ा विस्तार करके आपके सामने संवाद करूं तो ये कह सकता हूं कि सबसे पहला लक्षण तो ये है कि पुरुषार्थ निमित्त बनकर होना चाहिए। जिस पुरुषार्थ की आत्मा मैं बन जाए, मैंने कि यद्यपि जो करेगा उसको प्रतिष्ठा मिलेगी ही, एक कर्म सिद्धांत है। लेकिन करने वाले की आत्मा मैं न बन जाए, मैंने किया, मैंने किया। परमात्मा ने मुझे स्थान दिया, लोगों ने मुझे इज्जत दी। हो सकता था मेरी जगह कोई और भी बैठ सकता था, मैं निमित्त बना हूं। महाभारत के युद्ध में इतना बड़ा संघर्ष होने वाला है, वहां कहा जाता है भीष्म को पूछा कि आप कितने दिनों में महाभारत का युद्ध पूरा कर दोगे, तो बोले कितना समय लगेगा। आचार्य द्रोण को पूछा तो आपने कहा कि 2 दिन में। अश्वत्थामा को कहा तो उसने कहा 1 दिन में। कर्ण ने कहा तो आपने अपना अभिप्राय दिया।
लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया कि आप इस युद्ध को कितने समय में पूरा कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं, अर्जुन ने कहा एक पलक में। आंखें बंद करूं और आंखें खोलूं, इतने समय में एक कार्य हो जाएगा। सबको आश्चर्य हुआ, इतने इतने बड़े महारथी लोग थे, भीष्म आदि, सबने अपना अपनी क्षमता के अनुसार समय दिया, लेकिन अर्जुन ने जब ये बात कही तब पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है। तब अर्जुन ने कहा, मैं निमित्त बनकर के पुरुषार्थ करने वाला हूं, और निमित्त बनकर जो पुरुषार्थ करेगा वो एक निमेष में काम कर देगा। मेरे भाई बहन, आपके औद्योगिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ ही जरूरी नहीं, परम पुरुषार्थ भी जरूरी है, और उसके लिए पुरुषार्थी के मन में मैं निमित्त हूं ये भाव सतत रहना चाहिए। मेरी दृष्टि में पुरुषार्थ का दूसरा मुख है, वो है ये आपकी संस्था को मैं ध्यान में रखकर उसके कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बारे में केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के विचार मुझे देने हैं तो कुछ और सूत्रपात हो सकता है। पुरुषार्थ का दूसरा मुख है, जिस क्षेत्र के लिए हम बात कर रहे हैं उसमें निमित्त बनकर पुरुषार्थ करें, लेकिन कभी नमित बनकर पुरुषार्थ न करें। हार करके, निराश हो करके, हतोत्साह हो करके पुरुषार्थ न करें। कई लोग करने से पहले ही हार जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं असफल हो जाऊंगा। मनोविज्ञान का एक सूत्र है कि जो आप नहीं चाहते, कृपया ऐसा विचार कभी न करें। कई लोग करते हैं मरे मरे, ठीक है करते हैं, आ पड़ा है करना पड़ेगा, मरे मरे से नहीं। तीसरी बात है पुरुषार्थ की, नम्रता से पुरुषार्थ करें। संघर्ष भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। जहां संघर्ष विवेक छोड़ देता है वहां परिणाम विनाश के सिवा कुछ नहीं बचता। विनम्रता ये पुरुषार्थ और उद्योग जगत के उद्यम के लिए तीसरा मुख है, विनम्रता, नम्रता। आपने मुझे बोलने को कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं, यद्यपि ये मेरा विषय भी नहीं है, फिर भी मुझे जो लग रहा है वो आपको संवाद के रूप में कह रहा हूं। आप केवल सुनिए। उद्योग जगत के लिए पुरुषार्थ का चौथा मुख है
नियमितता, निरंतरता, तैल धारावत, अभी किया, चलो अब बाद में देखेंगे, नहीं हुआ, शायद नहीं हो पाएगा। ये जो मानसिकता है निरंतरता का खंडन करती है। नियमितता, नियमितता का केवल इतना ही अर्थ न करे कि समय में नियमितता, समय में तो रहना ही चाहिए, लेकिन समझ की भी नियमितता बहुत आवश्यक है। हमारी समझ निरंतर बनी रहे, तैल धारावत, दिए की लौ की तरह। ये पुरुषार्थ का आवश्यक मुख है। पुरुषार्थ का पांचवा मुख है नई नई चेतना को मौका देना। अवसर देना। बुजुर्ग लोग अपने अनुभव से उसको पुरुषार्थ की छलांग लगाना सिखाएं कि उद्योग कैसे विकसित हो, पूरे विश्व का अर्थतंत्र कैसे मंगलकारी हो, वैश्विक शुभ जिसमें छिपा हो, उसका मार्गदर्शन दे अपने अनुभव से। लेकिन छलांग भरने के लिए नई नई चेतना को तैयार करें, प्रोत्साहित करें। और छठा, पुरुषार्थ एक व्रत के रूप में किया जाए। भले ही आर्थिक क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, लेकिन ये मेरा अनुष्ठान है। मुझे खबर नहीं आपकी चेयर की मुद्दत कितनी होती है, कब चुनाव होता है, क्या होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस पद के लिए एक अनुष्ठान के रूप में ये होना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, उद्यमो भैरव, उद्यम ये भैरव है। स्व से लेकर सर्व तक के विकास के लिए आपकी संस्था और आपके पद का दायित्व बहुत बढ़ता है। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग जगत में स्पर्धा जरूरी है, लेकिन श्रद्धा भी जरूरी है। कभी कभी हम
हम स्पर्धा करते हैं, जरूरी है। मैं जगत समझता हूं कि भौतिक जगत में स्पर्धा होनी चाहिए, तभी विकास होगा। एक देश दूसरे देश से स्पर्धा करे, आगे बढ़े, आगे ये एक संस्था दूसरी संस्था, एक उद्योगपति दूसरा उद्योगपति। लेकिन इस पूरी माला में सूत्र एक होना चाहिए, धागा एक होना चाहिए, और वो श्रद्धा। और श्रद्धा पूर्वक जब आदमी स्पर्धा करेगा तो ये कार्य मेरी दृष्टि में अनुष्ठान हो जाएगा। मैं राजीव भैया को कहूंगा कि भैया आप इस पद पर सबकी शुभकामना से, आपकी क्षमता के कारण भी कई वस्तु आपको यहां ले आई। आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण जो कहो आप विराजमान हैं। एक साधु के नाते मैं चाहूंगा आप एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में ऋषि मुनियों ने अर्थ को भी एक पुरुषार्थ माना है। हमारे महाभारत आदि ग्रंथ में तो स्पष्ट सूचना है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती। धर्म यानी मैं कोई संकीर्ण रूप में कहने को नहीं हूं यहां। जिसका जो धर्म हो मुबारक, लेकिन धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। काम मीन्स यहां हम जो विकास के लिए सोचे, हम जो प्रोग्राम बनाए, हम जो मिशन लेकर चले, उसकी प्राप्ति होती है। और धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और ये सही मात्रा में सम्यक रूप में नियमानुसार ये गति हो तो एक साधक उद्योगपति निर्माण तक पहुंच सकता है। धर्म का निर्माण धर्म ऑलरेडी है, लेकिन धर्म के देश काल के अनुसार मूल को बदले बिना नए नए फूल, नए नए विचार सरणी का निर्माण करना पड़ेगा। उसके द्वारा अर्थ का निर्माण करना पड़ेगा। उसके द्वारा राष्ट्र की और विश्व की जो कामनाएं हैं, विश्व मंगल की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उसका निर्माण और अनुष्ठान पूर्वक ये 3 प्रकार के निर्माण की सीढ़ी पार करता है, उसकी मुट्ठी में निर्वाण होता है, जो बहुत दुर्लभ माना गया। तो राजीव भाई के लिए मैं कहूंगा कि आप अनुष्ठान का श्री गणेश कर रहे हैं। बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद है, आपके साथियों का पूरा सहयोग है। एक साधु के नाते मेरी भी हृदय की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हमारी औपनिषदी विचारधारा कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। आप प्राप्त करो, करना चाहिए, लेकिन उसको भोगो बांट करके।
और अनुष्ठान के लिए बहुत जरूरी है नैतिक मूल्य। हम अपने निजी और सामान्य स्वार्थ के लिए एक सामान्य क्षेत्र के से लेकर बड़े बड़े क्षेत्र में ईमान खो देते हैं। आज पूरे जगत में विकास की स्पर्धा चल रही है और अपने विकास में जहां भी कुछ तकलीफ होती है, ईमान की ऐसी तैसी। नैतिक मूल्य ये बहुत आवश्यक है। मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे देश के साधु चरित प्रधानमंत्री आदरणीय एक बार के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, आपने हमारे राष्ट्र को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान भी पुरुषार्थ करता है, अपने ढंग से खेती का उद्योग करता है, किसान और जवान भी सरहद पर पुरुषार्थ करता है। जय जवान जय किसान का। और उसके बाद हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक महामहिम एक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक थे। आपने एक तीसरा सूत्र जोड़ा था, जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का था। आपने एक तीसरा जोड़ा, जय विज्ञान। मैं तो इस श्रृंखला में इसी पंक्ति में नहीं आता। मैं तो तलगाजर डाक एक सामान्य साधु के नाते, मुझे भी इस देश के नागरिक के नाते कुछ कहने को मन होता है तो मैं कहूंगा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, लेकिन साथ साथ जय ईमान, ईमानदारी, नैतिकता। नैतिक रूप में हम कितने गिरते जा रहे हैं, गिर चुके हैं या तो गिरते जा रहे हैं, हम सब अपनी आत्मा को पूछे। जय ईमान। तो नैतिक मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। विश्ववंद गांधी बापू ने कहा था, संवेदनहीन विज्ञान सामाजिक पाप है। जब आदमी संवेदन शून्य हो जाता है, ईमान खो देता है, लुच्चाई करने लगता है, बेईमानी उसके लिए स्वाभाविक हो जाती है। और एक बड़े क्षेत्र की बेईमानी आखिर व्यक्ति का कितना शोषण करती है, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जिस ग्रंथ को लेकर मैं विश्व में घूम रहा हूं, इस ग्रंथ ने कहा है कि इस धर्म की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे कठिन से कठिन धर्म है वो सेवा। सेवा धर्म कठिन जग जाना।
तो जो भी क्षेत्र हो उसमें हम सेवा के लिए है। इसी भाव से यदि हम कार्यरत होंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। सबके विकास की बातें हमारे देश में दिल से हो रही है। आत्मनिर्भर भारत की उद्घोषणा भी गूंज रही है। ऐसे समय में आओ हम सभी मिल करके ऐसा विकास साधें कि विकास का फल केवल विलास न हो, विश्राम हो। कभी कभी लोग विकास का फल केवल विलास ही समझ लेते हैं। विकास का फल विश्राम हो। वो तभी होगा जब उद्यमो भैरव, हमारे जीवन में उद्यम को, पुरुषार्थ को हम भैरव बनाएंगे। ये मेरा विषय न होते हुए भी मेरे प्रति आपकी श्रद्धा और आदर के कारण आपने मुझे निमंत्रित किया और मैंने कुछ सोचा है, समझा है। गुरु कृपा से कुछ मात्रा में जीने का प्रयत्न किया है। उसके आधार पर मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। और कुछ न कहते हुए सभा में बैठे हुए सभी आदरणीय लोग और सभी भाई बहन और परम स्नेही राजीव भाई पोद्दार के साथ ही जो उसकी टीम पूरी, उस पूरी टीम के लिए मैं पुनः एक बार बधाई देता हूं, मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। आपको अनुष्ठान के रूप में ये कार्य करते करते आप सफल ही रहे, इतना नहीं तो सुफल रहे, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं फिर एक बार मेरी ओर से मंगल कामना करता हुआ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। Hello. Thank you. After that scintillating sermon, and as we move on to the end of the session, may I request Mr. Joseph Purakiwala, Vice President, IMC Chamber of Commerce and Industry, to conclude the session by presenting the vote of thanks. Just a minute, sir. I'll just unmute you. Sir, please, yeah. Yes, sir. Good evening, everybody. Good evening, everybody. I think we have had a scintillating sermon from Param Pujya Murari Bapuji. It's the first time that I've heard him, and I think his message
to IMC and especially our President Rajiv has been really motivating, and the blessings that he has given us and talked about humility and courage and determination in what we do. And more importantly, that whatever we do, it is with honesty and utter integrity. I must thank Bapuji for this lovely message, and I'm sure it will be the guiding message for all of us, not only for this year, but for the years to come. Thank you indeed, Morarji Bapuji, for spending your valuable time with us and guiding us on the right path. Thank you all for being here this evening. Thank you. Could you hear me, all of you? Yes, yes. Yeah, I'm done. Yeah, thank you, sir. So over. Thank you. Shri Poddar-ji, you would like to add something? Nothing to add after what Bapu said. Totally speechless. Thank you very much, everybody, for coming. A very special thanks to Kokila Ben Ambani for being with us today. Thank you, Auntie. Very grateful. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, friends.